पार्ट 1 में तो हम लोग अभी ऑलरेडी देख चुका है. देयर एक्चुअली हैव नॉट शोन how to provide compound discount in terms in the form of schemes. Here for the scheme purpose I am using 18.26. my version is 18.26. अब मैं स्टेट दिल्ली चेंज करके कर्नाटका करता हूँ. कर्नाटका करने के बाद एड्रेस थोड़ा एक डेमी एड्रेस देता हूँ. शॉप नंबर 4 म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स, your town, your place, कर्नाटका. ये वर्जन 18.26 है. यहाँ तो ई इनवॉइस क्यूआर कोडिंग नहीं आता है, ई इनवॉइस एसी के नंबर नहीं आता है, एसी के डेट फ्यूचर इसमें तो ये वर्जन में नहीं आता है. ये तो बहुत ओल्ड वर्जन है. मैं बैकएंड में तो SQL एक्सप्रेस 2019 यूज़ कर रहा हूँ और SQL मैनेजमेंट स्टूडियो भी मेरा 2019 का है. और जो SQL कोडिंग यहाँ लिखा है ना, ये एक्सेस डाटाबेस में चलता है. अब तक जो मैंने मंथ टोटल परचेज ये तो फॉलियो वन टेबल से ले चुका हूँ. यहाँ सिर्फ मैंने D11 से दिखा है क्योंकि मेरा तो ट्रायल वर्जन है, इसके लिए सिर्फ एक ही महीने का दिखा चुका हूँ. अगर आपको मई चाहिए तो D12 करना पड़ेगा वो क्वेरी पे, जून चाहिए तो D13 करना पड़ेगा. वैसे ही मार्च चाहिए तो मार्च अगला साल का लास्ट मंथ, दैट इज द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द current financial year. If you need that final last month of the current financial year, that means the financial year in which you are making billing, then you have to use बोलता हूँ एक मिनट, D22. वो लिस्ट मैंने डिस्प्ले में यहाँ दे चुका हूँ. D11 से शुरू हो जाता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई एक महीने के लिए जो सारा ट्रांजैक्शन. सो वट एवर द ट्रांजैक्शन दैट इज डन ड्यूरिंग पर्टिकुलर दैट मंथ, दैट विल बी registered in the table called folio 1 table, that you can find that cumulative value. For April it will be under D11 and for May it will be under D12. Similarly for the month of March it will be under D22. So whatever you have purchased during the month of February, that comes under D21. See, now I have enabled scheme master and in the voucher in futures and options there I have selected compound discount. अब मैं यहाँ compound discount लेता हूँ. You can take up to 5 but here I have taken only 3. See, first is percentage on the list price, second will be nature will be percentage on the price, third will be absolute amount, but I don't use that actually. So ये gold business के लिए, for the gold business, that festival offer बोल के दे देता है वो, they are going to give festival offer. So if you want to mention the name of the discount 1, discount 2, discount 3, you can mention the names also. So for the second one I have mentioned it as cash discount and the third one extra discount. Extra discount, if I want to make a separate accounting, that is also possible over there, but I have not mentioned that. So here in the voucher configuration I am selecting, I have enabled discount, that name is special discount, and auto round of final amount I have set upper limit to plus and lower limit to minus. That's all. अब आगे बढ़ते हैं. Schemes, I'm going to add schemes now. My scheme name, now first I will start the scheme name, April 2024 part 1, that is within the parenthesis I have mentioned 1. Whatever the name you want to give, you can give. Starting date is 1/4/2024, ending date is 34. See here in this case I have selected 18.26 because
मेरा 11.5 वर्जन वट एवर दैट आई हैव, that gives me 15 days trial period. So for this purpose, see now I'm going to select, now first I'm going to select belt TC 1312 TC. बेसिस क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पीस. सिर्फ अगर आप महीने में 2 पीस ले लिया, सो वट एवर द डिस्काउंट, हियर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कंपाउंड डिस्काउंट. हियर so I am going to provide you 36.44 plus 5.0% override. And then second product, this is first for product is over. Now see, I want to add many schemes, so now I want to add second scheme, that is, now I want to add second scheme. Yes, that is done. Now now I want to add second scheme. Name is, see हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिकल केसेस से देखना है. ये यूट्यूब में बहुत सारा स्कीम्स का वीडियोस अवेलेबल है, वो कोई एक्चुअली रियल लाइफ का नज़दीक कुछ भी नहीं है. देखिए मेरे पास 25 आइटम रहता है, 25 आइटम को मैं 25 टाइप स्कीम्स बना देता हूँ. सो यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ स्कीम्स. सी हियर डिस्काउंट विद डिफरेंट आइटम. सी हियर स्टबैक्सल 13 चकनट, अगर आपको एक पीस ले लिया, व्हाट आई एम गोइंग टू गिव हिम एज ए फ्री प्रोडक्ट, दैट इज स्टबैक्सल लॉक 85 मॉडल. फ्री क्वांटिटी कितना है, एक पीस. ठीक है. सो इफ यू बाई वी दैट, हियर इट विल बी फ्री. दिस इज माई. नाउ लेट अस create an invoice. I was thinking I had done one, so now let us create an invoice. LGST, I'm going to select LGST itemized. I already created a name called Nirmal Transport. Here I am starting making billing. Belt 4 piece. See, by default that 36.44 pieces has come, and now that color of the item name has turned red. Now gear guide plate, there is no scheme for this, so now it has not taken any discount. Now I want to give now I want to give him some discount, say some discount 32.20. Any discount, suppose whatever the discount that you are giving in your firm, something like that, any discount. Now let us come back, let us modify the bill. Gear guide plate, there is no scheme for that, so actual value has come now. Third one is stub axle chuck nut. Here I am going to select 6 piece, so 32.20. so stub axle chuck nut, I am going to delete that. Now अब मैं क्या कर देता हूँ, now what I am going to do is I am going to add a new item called lift pump bowl. So it has not taken any discount because earlier I had not mentioned any discount for that. Now I am going to mention a discount as 36.20%. Whatever the discount you want to give, you can give. So that final value now comes to 21.88.94. Now round off will take care. So okay, 32.20. Whatever the discount you want to give, you can give. So now I'm going to it is not necessary that I should remove that this round off. That will be removed automatically. Now let us start a query by name. Select star from tran3, where tran3.voucher type is equal to 9. This is the query.
Now I'm going to alter the query. Instead of tran 3, now I'm going to take tran 2 table. This has become useless. Now I can convert from here also, from tran 2, where tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2. Instead of tran2.voucher type is equal to 9, you can just mention voucher type is equal to 9 and rect type is equal to 2. But why do I write it like that is, I want a specific answer in my query. So for that purpose, I'm going to mention it as tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2. Because see, if you take the value of d2 comes not only in tran2 table also, it comes with other tables also. Then the entire computer gets confused. So in order to avoid the confusion, so I'm going to write specific fields with specific table name attached to them. Here see, select name alias from help1, where help1.code is equal to tran2.mastercode1. Why I have selected help1 table, do you know? See, help1 table is nothing but a child table of master1 table itself. So whatever the name is there in master1 table, the same name will be referred as name alias from help1 table. So I can take, as it's a relational database, I can pick the item name from either from voucher.gst sum itemized table, or from help1 table, or from master1 table, depending upon my choice. If it is a non-GST transaction, then there is no need for me to go to voucher.gst sum itemized table. So every transaction that I have to capture every transaction either from tran2 table or from help1 table. Now I have selected, in my case I have selected tran2 table. So now I'm going to start invoice designing. So already there's a format by name new design. So I'm going to remove that prior invoice design format, and now I'm going to add a format called new style. Okay, I have removed all other previously predefined patterns by busy, that is 3 inch, 4 inch, standard, A5. I have removed all that. Just I have added new style. See here, I'm going to start with, first line will be, I'm going to start with bold on and bold off. Then I'm going to select font 18 and font 18 off. Now the question is, what is the width of the A4 sheet in landscape mode? The width of the A4 sheet in the landscape mode, it can host 100, it can accommodate, not host, it can accommodate 147 characters, uncompressed characters. That means if you take it landscape mode, if you take the paper, if you want to print it in the landscape mode, then it can print 147 characters, just like CPI 12, CPI 10, that is normal printing mode. So uncompressed characters. But font 18 का मतलब क्या है? What is the meaning of the font 18? Font 18 is nothing but 147 uncompressed characters to be multiplied by 1.2, and then it has to be divided by 1.8, क्योंकि that is 180% of the CPI 12. इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, 147 has to be multiplied by 1.2, then it has to be divided by 1.8. So then in that case it comes to be 98. See here, I'm not using condense on, condense off, whatever the natural characters that is appearing over there, that has to come. अगर मैंने CPI 12 on, CPI 12 off कर दिया, then I have to use 147 multiplied by 1.2. CPI 12 is nothing but 120% compressed, expanded नहीं है, compressed of वो 10 इंच पर 10 कैरेक्टर्स पर इंच का compressed फॉर्मेट है. अब आपको फॉन्ट 15 लेना है तो देन 147 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5, वो जो कैरेक्टर्स जो आता है ना, वही कैरेक्टर्स बस. अब मैं बॉडी में आता हूँ, बॉडी में लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ ब्लैंक स्पेस ऑफ 147 लेफ्ट.
इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 147. व्हाट इज द विड्थ ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल लाइन? दैट इज 147 कैरेक्टर्स. सो अब 147 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, उसी 147 का कैरेक्टर्स का स्पेस ऑटोमेटिकली busy is going to create for me. But as soon as I that 147 characters gets that allotted, now I want to draw a horizontal line from the left of covering the length of 147 characters. That's all. देखिए ये इनवॉइस डिजाइनिंग आप कैसे भी कर सकते हो, थोड़ा आपको क्या करना है, बेसिक्स समझ लेना है बस. इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इनवॉइस डिजाइनिंग, यू कैन प्ले विथ इट. ये ऐसा नहीं है बिजी का ही कॉपी पेस्ट करो, ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है. यू कैन प्ले विथ इट, दैट्स ऑल. मुझे तो HTML नहीं आता है. अगर HTML आता है, मैं HTML कमांड सीख लेता था तो मैं और भी जबरदस्त इनवॉइस डिजाइनिंग कर सकता था. वो मुझे नहीं आता है. अब देखिए, whatever the scheme that has passed, in that case all the characters are converting into red. Now you can see it on the screen. अब print in landscape mode, I am setting it to yes. I want to print the invoice in the landscape mode. बहुत आसान है. इनवॉइस डिजाइनिंग इन बिजी इज मच ईजियर. कुछ नहीं है, आपको थोड़ा समझ लेना है, बेसिक से समझ लेना है बस, और कुछ नहीं है. अब नाउ सी, आई हैव 176 कैरेक्टर स्पेस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, out of that 176 characters I have to accommodate everything. If my item name, if it is more than 40 characters, then in that case I have to split the line. I have to split the line using hashtag single quote L1 single quote close. उसके सामने I have to mention L1 में how many characters that I have to provide. If that is not done, then I will use in SQL Server. If it is TSQL, that is if you are using ECSC models, then I will use substring. Whereas if you are using EM model, under that case in SQL query, while writing the SQL query, I will just mention mid of mid लिखने के बाद वो यूज कर देता हूँ, क्योंकि EM वर्जन को BusyWin क्या MS SQL का कमांड्स यूज करता है, लेकिन EC एंड SC वर्जन के लिए यू हैव टू यूज व्हाट इज दैट, यू हैव टू यूज TSQL commands. You can search that from Google also. मुझे भी हर एक कमांड्स तो याद नहीं रहता है. Even you can copy them even after searching it from Google. बट थोड़ा तो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग सीखना है, तभी आप विदाउट सीइंग द गूगल आल्सो यू कैन राइट. बहुत आसान है, बिजी तो बहुत आसान है. देखिए अब आ रहा है, बिकॉज इट इज गोइंग आउट, बिकॉज आई हैव नॉट reduced that space management has gone wrong, width management has gone wrong. Now I have not reduced that particular spaces. So see, it has gone to 130. It is not exactly 130, it must be something less than that, 128. अब देखिए, it will fill the landscape mode perfectly. See, now it is coming in landscape mode perfectly. Now we'll go to header.
अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेरी शुरू कर देता हूँ। क्वेरी का नेम होगा बॉयज। Whatever the name you want to give, you can give. Name of this query is boys. Now select m2 dot cm1 comma m2 dot whatever that m2, let's see later what is that cm1 cm2, we shall see that later. m2 dot cm2 comma m2 dot c3 from master support as m2, master support as m2 full outer join tran2. See, this is the name. This is actually a left outer join, but the left outer join is also referred as full outer join. Full outer join tran2 on tran2 dot master code 1 is equal to m2 dot cm1, where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. What is this? See, I am joining item name from tran2 table with item name from master support table. They are having different names and different master codes are being same, but they are having different names. That's all. This is what I am going to get. See, now I should see what is that cm2, what is that cm1. Select name from master 1 where code is equal to tran2 dot where code is equal to m2 dot cm1. That's all. m2 dot cm1. So there's a comma is there. Okay, no problem. Now I'm putting the comma after first second in the second line. Now again I'm going to write a subquery. I'm copying that, and here I'm going to write the subquery. I'm copy pasting that, but instead of cm1 I'm making it cm2, so that I have to remove one more comma from line 4. Now saved the query. Let us run the query. See, now belt 1312 tc, in the column 2 it is blank because there is no free item for that, and but I'm going to give her give only discount for that. So then also there is no change. Now instead of full outer join I'm making it a left join. Result will be same, there will be no change. Left join. Okay, then I'm trying with right join. I want to see what is going to happen. No change. Now I'm going to make it inner join. So what's going to happen now? No change, and tran2 dot rect type is equal to 2. Rect type refers to items only. tran2 टेबल एक्चुअली आपका मेजर काम करता है. tran2 टेबल में sales related all the informations are there being stored at tran2 table, but I don't want that tran2 table every time. So instead of simply calling that every time, whenever I need to print the item names, then I have to select tran2 dot rect type is equal to 2. Otherwise I have to find some other filter conditions where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number @. This is what I have to write. Now from query type, from direct item sr number @. Now from here I have to take item details. Sorry, it's not master, item details. Okay, now I can print all these related items. See, I already printed item name. Now I have to print. First I was thinking of using union all query. मैंने union all query यूज करने का सोचा था, बाद में मैं समझ लिया union all query यहाँ तो जरूरत नहीं है. Even you can use that, but it depends upon your skill. But using union on query is not necessary here. नेम तो होगा टॉयज,
ओपन हो नहीं. ओके, लेट अस सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन. नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट. SQL क्वेरी टेक्स्ट नेम होगा boys. Whatever the name you want to give, you can give. Whatever the name that you have given in the query, same name has to be called in for printing the invoice also. While creating the invoice, when you are writing the SQL, when you are configuring the invoice body, then you have to call the same query. You have to call the same query for printing. If you call different query, then your result will be different. Okay, now I'm going to save it. After saving this, let us check our invoice. Let us preview our invoice. Print preview. I'm going to see what is happening in my print preview. Yes, it has come. Whatever the item free was only that stub axle checknut 30. According to my scheme, if you buy stub axle checknut one piece, you are going to get stub axle lock as free item. You can consider that as a free item or a item with discounted rate. However you mention, the same result you will have. Whatever you want to mention, you can mention in the schemes also. Even at this moment also you can modify the schemes, and you will your result will also be different of that. Different. SQL query here I'm going to mention it as what is that, boys 3. Boys row is equal to 1, column is equal to 3, but I have a doubt because that is the text. My belt discount is given plus, that is considered as text, and it will not be printed. Later I have to change query type, it will not be printed क्योंकि मैंने गलती कर चुका है यहाँ पे. ये गलती से ये प्रिंट नहीं हो पाएगा. अब if you check it in print preview, you will never get that answer that a discount. No, see, that has not come. Why that has not come? Because it is the unknowingly I made a mistake. So because of that my mistake, it is not coming down. Now here it is perfect. Now query everything is all right, but while recording the video I never understood that. So now actually that should come. Okay, that's also perfect, but the problem was at invoice design. अब मैं इनवॉइस डिजाइन को बाकी जाता हूँ. एक्चुअली क्या था, वो तो टेक्स्ट था. टेक्स्ट का फील्ड में मैंने क्या किया, नंबर डाल ले लिया. SQL क्वेरी में मैं देखिए बॉयस नंबर ले चुका हूँ मैं. सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो इट इज वेरी क्लियर, बट आई नेवर गॉट दैट पॉइंट एट दैट मोमेंट. सी नाउ yes, the mistake is there only with हाँ. अब देखिए मैंने चेंज कर दिया, मेरा आंसर तो मुझे मिल गया. वहां तो आई हैव कन्वर्टेड दैट एज टेक्स्ट. देखिए मुझे नंबर न्यूमेरिकल फॉर्मेट से वो टेक्स्ट लेना था, टेक्स्ट तो आ गया बस. अब सेव कर देता हूं. अब इसके बाद मुझे तो GST ऐड करना है. अब देखिए इतना तो आ चुका है, इतना तो आ चुका है. देखिए बिजी आपके लिए कितना काम ऑटोमेटिकली करके देता है. इनवॉइस मैनेजमेंट के लिए बिजी के सामने कोई सॉफ्टवेयर नहीं है. बहुत अच्छा इनवॉइस मैनेजमेंट होता है बिजी में. दूसरा सॉफ्टवेयर रहेगा लेकिन बिजी तो बहुत पुराना है और आपका साथ हर एक काम भी करके देता है.
select name from master 1 where code is equal to, अब देखिए वही क्वेरी थर्ड लाइन में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, सेलेक्ट m2 डॉट master code from m2 dot master support as master as m2 where m2 dot cm1 is equal to tran2 dot master code 1 क्लोज कर दिया from tran2 where tran2 dot which type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. एक क्वेरी का आंसर है, सॉरी एक क्वेरी का अगला पार्ट है. अब मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आई एम गोइंग टू रन इट. सो दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम, दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम. नाउ आई एम टेकिंग इट फॉर प्रिंटिंग where tran2 dot voucher type is equal to @voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number . Why that is item, nobody has asked me so far. Why do you, अगर हमें tran2 dot sr number is equal to @item sr number का जरूरत क्या है? देखिए एक इनवॉइस में आपका पास, आपका इनवॉइस में आप एक आइटम भी बिल कर सकते हो, 10 आइटम भी बिल कर सकते हो, 128 आइटम्स इन ए सिंगल इनवॉइस बाय डिफॉल्ट आप बिल्ड कर सकते हो. तो एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है. जिस इंक्रीमेंटल मूवमेंट के लिए, डाटा इंक्रीमेंटल अगला रो आने के लिए हम लोग क्या करना है, हर रो नंबर को एक वेरिएबल बोल कर डिक्लेयर करना है. जब वो रो नंबर 2 पे रहेगा ना आपका इनवॉइस में, तब ये प्रिंटिंग के लिए डाटा सर्च करेगा बैक एंड में जाके, SQL एक्सप्रेस में आपका डाटा कहाँ है ये बोल ढूंढ के वो सी ड्राइव में डाटा टेबल में रहता है, डाटा का फोल्डर में रहता है. उस कंपनी का जो डाटा वहाँ से ये सारा डिटेल विद इन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर बाहर लेके आता है. ये वेरी स्टेबल डाटा बेस है SQL सर्वर एक्सप्रेस. आपको सिंगल यूजर के लिए SQL एक्सप्रेस ही काफ़ी होता है, मैनेजमेंट स्टूडियो की ज़रूरत नहीं रहता है. मैनेजमेंट स्टूडियो इसलिए डालते हैं हम लोग क्योंकि अगर हमको क्या करना है, समझो कि आपका डाटा शेयर करना है, तब मैनेजमेंट स्टूडियो होना है. और एडिशनल फीचर्स कुछ है, अगर आप एक डेवलपर या डिज़ाइनर हो और आपका क्वेरी आप पहला SQL सर्वर में लिख के बाद में बिजी के अंदर आके देखते हो तो तब ये चल जाएगा. देखिए जो स्कीम का ये क्या है, घोषण किया है, ऐलान किया है, उसी जगह पे ये अभी आता है, बस दूसरा जगह पे नहीं आता है. अब न्यू स्टाइल में मैं आगे बढ़ता हूँ. आगे बढ़ के अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे और भी आगे जाना है. यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट वो क्या है, फ्री आइटम का नेम फ्रॉम 25 स्पेसेस आई हैव रिड्यूस्ड इट टू 20 स्पेसेस. अगेन आई एम रिड्यूसिंग इट टू 18 स्पेसेस. अब तो सेव कर दिया. सेव करने के बाद यहाँ हेडर में भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा. ओके, लेट अस चेक आइटम प्रिंट प्रीव्यू. अब देखिए 65 नहीं होता है, 60 ही होता है. वो 5 स्पेस एक्स्ट्रा ले लिया है, इसके लिए आई हैव टू रिड्यूस दैट 5 स्पेस नाउ. Blank space I have mentioned it as 65, but it is not 65, it should come down to 60 only. Yeah, that is the mistake. अब एक नया क्वेरी टाइप करते हैं, कुछ भी नाम दो. मैं यहाँ दिया है गर्ल्स. select star from tran2 where star from master support
एज M2, यह तो मुझे देखिए, यहां मुझे मेरे पास है 1306, 1307, 1307, ठीक है, ये सब है। अब सेलेक्ट, एक सब क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट M2 डॉट D1 from master support as M2, master support as M2, where M2 dot CM1 is equal to tran2 dot master code 1, कोड 1। अभी ये मास्टर सपोर्ट से हटा देता हूं, थर्ड लाइन, फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट वॉचर टाइप इज इक्वल टू 9 एंड tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 2, रेक टाइप इज इक्वल टू 2। अब एक्सिक्यूट कर देता हूं इस क्वेरी। अब मुझे तो मिल गया 2 and 1। व्हाट इज दैट 2 and 1? दैट इज, आपको scheme applicable on how, which quantity? See, scheme is applicable, but what is the scheme quantity? In order to be for being eligible for scheme, you should purchase that minimum quantity। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको स्कीम में एलिजिबल होना है तो आपको इतना क्वांटिटी परचेज करना ही है। वो स्टार हटा दिया मैंने। अब स्टार हटाने के बाद वेयर tran2 डॉट, वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @। यहाँ क्वेरी टाइप में लास्ट को मैं लिखता हूँ आइटम डिटेल्स। अब सिलेक्शन कर देता हूँ आइटम डिटेल्स। हाँ, ओके, हो गया। अब और एक क्वेरी लिखता हूं, फ्रेंड्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर सपोर्ट, बस इतना ही लिख के रन कर देता हूं। मास्टर टाइप तो वहां भी 6 होता है, ठीक है, 1279, एंड यहाँ तो क्या होता है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। अब बस इतना ही लिखता हूं। इनवॉइस डिजाइन में दोबारा आता हूं। अब न्यू स्टाइल सिलेक्शन किया, अभी बॉडी में आता हूं। बॉडी में आके अब यहां टाइप करता हूं क्वेरी, SQL क्वेरी नंबर लिया, नंबर लेके नेम गर्ल्स, रो इज इक्वल टू कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ एक ही क्वांटिटी है बस। अब इसके बाद BLV कमा ये लिखना पड़ेगा। अब 9 कैरेक्टर्स का विड्थ ब्लैंक स्पेस से कम करना पड़ेगा बस। अब ब्लैंक स्पेस में 9 कैरेक्टर्स कम करना पड़ेगा। नाउ दैट विल कम डाउन टू 19, from 28 to 19, that has been reduced from 28 to 19। अब देखिए मैं स्कीम डिटेल्स में बोलता हूं, that is my scheme quantity। See, now you can see my scheme quantity, it is 4th column। अभी लेफ्ट साइड से 4th कॉलम वहाँ 2 और 1 बोल के आ रहा है, वही हमारा स्कीम क्वांटिटी। अगर आप इतना ले लिया है, अब मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट को देना है। वो तो नहीं दिया है, वो दिखा देता हूं, ठीक है। अभी आप तो देख रहा है। अब तो हो गया, ठीक है। अब बॉडी में आता हूं,
आके वहाँ वंस को कम करके, सोच रहा हूँ कम करने का, I want to provide additional space, so अब बड़ी में आता हूँ, यहाँ पे आके टोटल स्पेस का कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। अब तो मुझे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन, फिल्टर कंडीशन देख रहा हूँ। ओके ठीक है, डेट 2 के लिए डेट 1 लेना पड़ेगा बस। अब क्वेरी लिखता हूं, एक ऐसा टाइप का सब क्वेरी सोच के लिखना पड़ेगा, नहीं ये नहीं चलेगा। m2 डॉट डेट 1 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2। ओके, इसके बाद इनर जॉइन, अब लेफ्ट जॉइंट tran2 on tran2 dot master code 1 is equal to tran2 dot m2 dot cm1, where tran2 dot object type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2। इतना तो लिख लिया। अब लिख रहा हूं, अब लिखने के बाद अब इस क्वेरी को रन करके देखता हूं मुझे डेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डेट नहीं मिलेगा, एक क्वेरी से नहीं होने वाला है काम। क्योंकि मास्टर कोड 1 वो आइटम नेम इन फ्रंट ऑफ द डेट, देयर इज नथिंग माई m2.cm1। इसके लिए भी क्वेरी तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अब दिमाग से काम करना पड़ेगा। सेलेक्ट m2.date फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2 where m2.cm1 is equal to 0। देखिए मैं कंडीशन लाइन से लगा देता हूँ, where m2.cm1 is equal to 0। ये कोरिलेटेड क्वेरी है। अब तक मैंने कोरिलेटेड क्वेरी आपको कहाँ भी नहीं दिखा है। इस क्वेरी को उसी क्वेरी से मिला देने का बस। cm1 is equal to 0। अब सोच रहा हूं and m2 dot master code is equal to and select star from master support। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है मुझे अब, क्योंकि ये तो ऐड तो करना है, किसको किससे मिलाना है, बस यही तो सोच रहा हूं मास्टर कोड का। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मिला देता हूं। मिला देता हूं, मुझे 1306 होना है, बस 1307 होना है। उठा देता हूं। अब क्वेरी में आता हूं, अब एक क्वेरी लिखता हूं स्नो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। सेलेक्ट, अब एक सब क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज m2। दोबारा कोशिश करके अभी लिखता हूं क्वेरी, कोई बात नहीं। ये कंडीशन तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। बस अब मिल गया क्वेरी। अब लिखता हूं सेलेक्ट m2.date
from master support as em2, from master support as em2 where m2 डॉट मास्टर कोड इज इक्वल टू, अब सब क्वेरी चलाने शुरू कर देता हूँ, m2 डॉट वेयर m2 डॉट cm1 इज इक्वल टू 0। देखिए मुझे मेरा कंडीशन क्या है, m2 डॉट cm1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 डॉट मास्टर कोड इज इक्वल टू, बस अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट m2 डॉट मास्टर कोड from master support as m2 where m2 dot cm1 is equal to tran2 dot master code 1, उसके बाद दो टाइम पैरेंथेसिस क्लोज, बस यही लॉजिक। देखिए m2 dot cm1 is equal to tran2 dot master code 1, डबल टाइप पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ, बस। अब फ्रॉम tran2 मास्टर सपोर्ट हटा देता हूँ यहाँ नीचे, फ्रॉम tran2 वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू, यही लॉजिक क्या है, मुझे क्या चाहिए, मास्टर सपोर्ट टेबल से मास्टर कोड चाहिए, उसका नेम तो मैं मास्टर 1 टेबल से निकाल देता हूँ, वो कंडीशन कैसे रहना है, वो ढूंढने का टाइम में cm1 0 होना है, और देखिए आ गया cm1 0 होना है, और अंदर क्वेरी चल के मुझे एक मास्टर कोड देना है, किसका देना है, सेलेक्ट tran2 डॉट cm1 इज इक्वल टू मास्टर कोड डॉट tran2 डॉट मास्टर कोड 1, बस वही क्वेरी। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, डेट का जगह में डेट 1 लेता हूँ, बस। अभी स्टार्टिंग डेट क्वेरी, स्टार्टिंग डेट क्वेरी, एंडिंग डेट तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया। देखिए अभी स्टार्टिंग डेट तो एंडिंग डेट तो मिल गया, हो ही गया मेरा काम। अब इस आंसर को मैं आइटम डिटेल्स में प्रिंटिंग के लिए लेके जाता हूँ। अब लिखता हूँ लास्ट लाइन में, एंड लास्ट बट ऑन लाइन में लिखता हूँ वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड @वोचर कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @आइटम SR नंबर @ यहाँ क्वेरी टाइप में मैं लेता हूँ आइटम डिटेल्स। अभी लिख रहा हूँ आइटम SR नंबर @ बस हो गया। अब इस क्वेरी को मैं, स्नो क्वेरी को मैं प्रिंट में लेके जाता हूँ, लेके जाके हर आइटम का सामने आखिर ये है तो ये प्रिंट में आ जाएगा, ये तो प्रिंट में आ जाएगा, इसी को लेना है। अब देखिए डेट तो नहीं आया है, मैं कहाँ लेना है ये तय कर रहा हूँ, कहाँ लेना है मुझे। अब डिसाइड तो करता हूँ, कर लिया है, करने के बाद अब SQL क्वेरी डेट लेता हूँ, फंक्शन तो मैं डेट का लेता हूँ। अब डेट का लेता हूँ, डेट मैं नॉर्मली लेता नहीं हूँ, मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ही प्रेजेंट करता हूँ। फिर भी अभी इस टाइम मैं क्या कर देता हूँ, डेट 1 डेट 2 लेता हूँ। वो क्वेरी स्नो था, इसके लिए मैंने क्या कर देता हूँ, रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ, स्नो क्वेरी का नेम लिख देता हूँ, तभी स्टार्टिंग डेट आता है। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, एंडिंग डेट लेता हूँ। डेट नेम तो होगा स्नो सेमीकॉलन रो इज इक्वल टू 1 हाइफन कॉलम इज इक्वल टू 1। ये तो स्टार्टिंग डेट हो गया। इसके बाद BLV का मैं ये लेता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, अब पेस्ट भी कर देता हूँ। 11 स्पेस, मेरा ब्लैंक स्पेस से 11 स्पेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ तो मिल जाएगा 8 का स्पेस। अब इस 8 का स्पेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, और 2 बढ़ा के 3 स्पेस को बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद मैं एंड डेट वही से कॉलम नंबर 2 से लेता हूँ एंड डेट। अब देखिए मुझे स्टार्ट डेट तो आ गया, अब मुझे क्या करना है, एंड डेट को तैयार करना है। अभी एंड डेट को लेना है मुझे,
अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ के बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आके स्नो के बाजू वहाँ एक स्पेस क्रिएट करके सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ क्या कर देता हूँ, कॉलम नंबर 1 का जगह में कॉलम नंबर 2 कर देता हूँ। देखिए ब्लैंक स्पेस को मुझे हटाना पड़ेगा, नाउ स्पेस को कॉलम इज इक्वल 1 की जगह में मैंने करना पड़ेगा कॉलम इज इक्वल टू 2 और बी स्पेस से हटा के फ्री आइटम को मैं करना पड़ेगा 18। अब सेव कर देता हूं। अब प्रिंट प्रिव्यू में आके देखते हैं। अब तो आ गया। बीच में एक स्कीम डिस्काउंट का बाद में एक राइट साइड में एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया, वो एक ब्लैंक स्पेस बाकी छोड़ा है, वो ब्लैंक स्पेस को भी ढूंढ के हटाना पड़ेगा। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ 17 से 18 करता किया था स्पेस के लिए। नहीं, ये प्रॉब्लम उसका नहीं है। अब ये तो समझ लिया मैंने। ये वर्जन तो 18 है, डेमो वर्जन है। BLB कम है, ये डबल हो चुका है। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर मिल रहा है, डबल हो गया है। अभी एक BLB कम है, ये को हटा दिया। हटाने के बाद तो ठीक हो जाता है, अलाइनमेंट तो परफेक्ट हो जाता है। अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं। आ गए, देखिए प्रिंट प्रीव्यू में परफेक्ट आ गया। अब बस बाकी काम तो करना पड़ेगा। अब हो गया। कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेरी लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सेलेक्ट नेम अलियास फ्रॉम help1 where help1.code is equal to something like that। अब मैंने क्या कर देता हूँ, यहाँ एक नया क्वेरी लिखता हूँ, वोट। देखिए absolute of abs dot of tran2 dot d1 सब स्ट्रिंग, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका है ये क्वेरी। क्योंकि अभी मैं आइटम बॉडी लेंथ इफ इट इज मोर देन 20 कैरेक्टर्स एज आई एम यूजिंग SQL सर्वर इसी मॉडल में मुझे क्या करना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा। एंड आई कैन नॉट यूज इट लाइक मिड ऑफ फंक्शन एज इन द केस ऑफ SQL सर्वर। फिर भी यहाँ लिखता हूँ सो 41 to 60 क्योंकि ये SQL सर्वर है, इसी मॉडल है, इसके लिए मैंने सबस्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेस डाटाबेस में हो आप, तब आपको सबस्ट्रिंग का जगह में MID बोल के लिखो, बस चला जाता है। इतना तो आ गया। कॉलम 2 में आ गया, यस ओके। दी आइटम लेंथ वो था ना, वो कट होके इतना आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ, अब 0 to 20 यह करेक्ट है, 0 to 18 लेता हूँ। यहाँ 19 से 40 लेता हूँ,
41 से 60 ठीक है, 19 से अब 36 लिया, यहाँ 37 से 55 करना पड़ेगा, 37 यहाँ तो करना पड़ेगा 55, अब सेव कर देता हूँ। ओके कोई बात नहीं, वहाँ 19 लेता हूँ, यहाँ 20 लेता हूँ, यहाँ 20 लेता हूँ। ये ट्रायल एंड एरर मेथड, इसमें कुछ और कुछ नहीं है, बस हो गया। अब टॉइस में जो था ना वो उसी सेम लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया, वोट में आता हूँ, वो लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अभी भी गलत हो जाता है क्योंकि वहाँ तो वेयर तो 2 टाइम आ गया है, सो स्टिल इट विल बी एन एरर। इफ आई लुक एट माई इनवॉइस डिजाइन it will be an error, blunder, it is not an error, it will be a blunder। यहाँ लिखता हूँ नाम वोट उतना लिखने के बाद अब लेता हूँ मैं प्रिंट इफ एनी, F4 दबा देता हूँ और P टाइप कर देता हूँ, प्रिंट इफ एनी कमांड लेता हूँ। इसके बाद CP8 ऑन CP8 ऑफ लेता हूँ। इसके बाद 4 ब्लैंक स्पेस लेता हूँ, चार ब्लैंक स्पेस लेने के बाद वो वोट क्वेरी रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2 कर देता हूं। यहां तो मैंने लिखा है 21 कैरेक्टर्स, वर्चुअली नॉट वर्चुअली, रियली टू बी फ्रैंक आई हैव सिलेक्टेड ओनली 18 कैरेक्टर्स। ये 3 स्पेस तो बचेगा ही, उससे मुझे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, इसके लिए मैंने वो चीज को ऐसे ही छोड़ दिया। अब कॉलम इसको तो 3 कर देता हूं, सेव कर देता हूं। यहाँ तो आइटम डिस्क्रिप्शन, आई एम जस्ट अज्यूमिंग देयर इज नो आइटम डिस्क्रिप्शन टू बी प्रिंटेड, सो अगेन नाउ आई विल हैव एन एरर because of that I have not changed the coding, so as such I will be having trouble with this invoice result rightly at this moment. Then I have to come back and I have to alter the query. Definitely it is going to be a trouble. अब तो ये ट्रबल बनता है, नेचुरली बनता है क्योंकि क्वेरी गलती है। सी जस्ट आई एम काउंटिंग, ठीक है। अब प्रिंट प्रू में आके देखता हूँ, यहाँ तो मुझे पता चल जाएगा एरर 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 एरर, यस एवरीवेयर एरर, नॉट ओनली एरर इट इज ए ब्लंडर। क्लोज कर देता हूँ। वोट क्वेरी को जाना पड़ेगा, अभी दोबारा वोट क्वेरी को जाता हूँ, वहाँ गलत है। देखिए वेयर तो लास्ट टॉप से लास्ट से 3rd लाइन में वेयर दोबारा 2 टाइम प्रिंट हो चुका है, फ्रॉम टोरंटो के नीचे वेयर हो चुका है, वो लाइन का जरूरत नहीं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो वेयर दो टाइम्स प्रिंट हो चुका है, बस यही गलती था। अभी यही गलती को मैंने ठीक कर दिया। अब तो प्रिंट आउट बिल्कुल आएगा, अच्छे से आएगा। देखिए आ गया। अर्लियर आई वाज थिंकिंग ऑफ यूजिंग union all query, union all process, but I never use that.